वेलकम टू द सक्सेस टॉक शो। और आज हमारे साथ है बॉबी वत्स जी। बॉबी सर ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अलग अलग वर्सटाइल रोल्स प्ले करते हैं। अगर हम बात करेंगे एक्टर की तो इनके बहुत सारे ऐसे क्रिएशंस है जो हमें IMDb के वेबसाइट पे देखने मिलेंगे। सर, आई वेलकम यू टू द सक्सेस टॉक शो। Pleasure meeting you. It's a great honor and pleasure to be here in this podcast with Mr. Rohan Humkar, and I'm looking forward to get into some insights which are beneficial for each and everyone. Great, sir. The Success Talk Show is basically aimed for creating the content which is helpful for the youth to get inspired and to achieve success in their life. And the guests, those who are coming to our podcast, are adding immense value for our audience. So I thank you from my audience to you that with this today's discussion, today's podcast, audience will get benefited for different varieties of insights which they may not find on Google. Watch our podcast till the end so that you can not miss a single piece of information with Shri Bobby ji. Sir, I again welcome you to the podcast और आज हम बात करेंगे सक्सेस के ऊपर और बहुत सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ पर आपके ज़िंदगी के जो मायने हैं आप वो बता सकते हैं, बयां कर सकते हैं और आपके जो फ्यूचर प्लान्स है उसके लिए भी आप एक तरह से इंस्पिरेशन यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। I'm so honored to be in the podcast. Great. So when we talk about the success, everyone has their own definition of success. Sir, as you are a guest for our podcast, I would like to ask you to introduce yourself to our audience. Namaskar. I'm Bobby Watts. I'm an actor and been practicing this art form for more than 15 to 20 years now. थिएटर से शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे धीरे टेलीविजन सीरियल्स में काम मिला, फिर फिल्मों में पहुंचे और उसके साथ साथ जिंदगी के एक्सपीरियंसेस ने पब्लिक के साथ जोड़ने को का एक मंच बनाया. I got connected with public speaking. Then every day is a new day for an actor, and every day, the last day of shooting is like a newborn baby. Yes. Next day you have to restart your creative journey, and so far so good. ग्रेट सर. सो जब हम बात करेंगे एक्टिंग की एज अ करियर, तो आपने बहुत बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हुए होंगे जहां पर आपको लगा होगा कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ. तो आप आपके सक्सेस की परिभाषा क्या करते हैं? आप आपकी जीत की या आप आपके सक्सेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं सर? For me, definition of success is the satisfaction of work is also a success for an artist. मोटिवेशन होना चाहिए और जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. यू हैव टू कंसिस्टेंटली परस्यू योर गोल with dedication, with education, with training, and with all the aspects that would help you to reach your destination. And eventually, when you will reach your destination, then you will feel successful. Success is a state of mind where you're happy and satisfied with your work. That is the biggest success. Great. So when we talk about the success and you are defining it, our own mind actually defines our own success. And definitely when we talk about the success and we need to do hard work, we required some kind of inspiration. So what are those things which inspire you, sir? Inspiration comes in many ways, and inspiration enables you to train yourself. So that comes with reading good literature. Secondly, meeting with people. For me, theatre was very, very important because that was one thing which opened me up. The inhibitions that I had inside me as a person, but when आप स्टेज पर होते हैं तो वॉल नहीं होती है, ऑडियंस और आर्टिस्ट आमने सामने होते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ता है और डेफिनेटली वो सारी चीजें आपको ग्रूम करती हैं एज एन आर्टिस्ट. तो धीरे धीरे आपको पता लगता है कि किस दिशा में कितना काम और आपको करना चाहिए. क्योंकि कभी भी ऐसा कोई भी nobody is perfect, even nature is not perfect. तो वो कंटिन्यूसली आपका एक प्रोसेस है. Every day it's a 24-hour process for an artist. Great. It was really wonderful to know that
when we talk about the inspiration, we always looking for some kind of training, some kind of the guidance. And what is your take on importance of a formal education in coming into the film industry? मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने कहा कि सक्सेस के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। मेरे लिए सक्सेस का मायना, या ज्यादातर मेरे जैसे कलाकारों के लिए सक्सेस का मायना उन सेटिस्फैक्शन में होता है कि आप अगर जो काम कर रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड होते हैं करने के बाद में, तो आपको लगता है कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और वो आपका तो एक बौद्धिक और हर तरह का विकास करता है, लेकिन आपको ये लगता है कि आप सही जा रहे हैं। और असली सक्सेस वो है कि व्हेन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन with inspiration, with recognizing others in the journey. And people say that, journey is not important, destination is important. I believe the company in the journey is important. Oh, great, amazing. Because anyway, we are going to reach to the destination. Great. So today's episode is going to be amazing. So what is that one thing, or we can say the thing which is inspiring you to do that hard work and to achieve that success? मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलूंगा जो मेरे एक डायरेक्टर ने मुझे कही थी। बहुत अच्छी बात है, अभी तक याद रह गई। मैं कोई टीवी शो कर रहा था, तो डायरेक्टर साहब ने मुझसे बोला कि अच्छा तुम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं तो कर ही लूंगा। आपको हर फ्रेम, हर शॉट में उतनी ही मेहनत करनी है, तो आपको किसी चीज को लाइटली नहीं लेना है। आपकी जर्नी में सबसे बड़ी चीज होती है आपका फोकस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि जब आप किसी चीज को फॉलो करके कहीं पहुंच रहे होते हैं तो व्यवधान तो आते हैं। देयर आर गोइंग टू बी ऑब्स्ट्रक्शंस इन योर जर्नी, देयर आर गोइंग टू बी इम्पेडिमेंट्स व्हिच आर गोइंग टू डिमोरलाइज यू, योर माइंड विल गेट डिप्रेस्ड। सो वी हैव टू फाइट ऑन सो मेनी लेवल्स and you have to prepare yourself. And when your awareness is of that level where you are motivating yourself with positivity, which includes even the challenges that you're facing. Life में problems मैं नहीं मानता हूँ होती है, मैं कहता हूँ लाइफ में आपको challenges मिलते हैं। प्रॉब्लम्स तो एक नेगेटिव माइंडसेट का डेफिनेशन हो सकता है। मैं बोलता हूँ कि एक चैलेंज मिला है और आपको करना है, वो अगर आप वो कर जाते हैं तो सक्सेस भी वही है, आपका हार्डवर्क भी काम में आ रहा है। सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट, दैट यू हैव टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। सपोज यू आर डूइंग ए प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू कंप्लीट इट, then when you will complete it, then you can call yourself success. Then evaluation तो बाद में होता ही है। जैसे आप कर्म करते हैं तो फल मिलता है, वो आपके हाथ में नहीं है। कर्म करना आपके हाथ में है, अच्छा कर्म करना आपके हाथ। ग्रेट सर। एज अ एक्टिंग एज अ करियर, पास्ट वर्क के बारे में थोड़ा बताइए। आपने कहाँ पे मैं जब बम्बई आया था तो मैंने पहला एक्टिंग का वर्कशॉप किया था पंडित सत्यदेव दुबे जी के साथ पृथ्वी थिएटर पे। उन्होंने शायद इकलौता वही वर्कशॉप किया था। हम लोगों का 1.5 महीने का वर्कशॉप था, तो वर्कशॉप के एंड में सिर्फ 8-9 लोग बचे थे, उसमें से मैं भी एक था। तो वहां से शुरुआत हुई और वहां से जो लेसन्स मिले वो आज तक काम में आते हैं, क्योंकि गुरु लोगों का सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ छोटी छोटी चीजें भी उस वक्त शायद समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत देर के बाद में आपको उनका मीनिंग पता लगता है। तो एक इफेक्ट और इम्पैक्ट अच्छी ट्रेनिंग का हमेशा होता ही है। एक लॉन्ग रन में अगर आप एक पर्सपेक्टिव के तौर पर उसे देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट हार्ड वर्क दैट यू डिड इन द बिगिनिंग वाज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर वर्क टुडे। ग्रेट। तो वो एक तरह से फाउंडेशन आपका इतना स्ट्रांग बना। देखिए, फिर मैंने एक्टिंग को लेकर मुझे एक पहला शो मिला अनिल चौधरी साहब का, तो मैंने शुरुआत की थी। श्याम बेनेगल जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया खत्म होने वाली थी, मैं गया था, मैंने ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, और श्याम बेनेगल साहब उसके डायरेक्टर थे। तो एक शुरुआत में ही मुझे उस वक्त शायद उतना अंदाजा नहीं था कि मैं कितने बड़े लेजेंड के साथ काम कर रहा हूँ, बट वो चीजें बाद में मेरी समझ में आई तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे टेलीविजन शोज किए, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल डायरेक्टर्स थिएटर उनके साथ भी काम किया, मैंने वर्ल्ड ट्रैवल भी किया थिएटर से, फिर फिल्मों में भी मैं आया। तो धीरे धीरे काम ने काम को अच्छा किया और रवानगी आई काम में, और काम आता गया और अच्छे टीचर्स मिलते गए, मेहनत की,
खुद का स्वाध्याय किया। और यू सी इट इज बेसिकली एक्टिंग का जो फील्ड है, एक्टिंग हो या कोई भी फील्ड हो, वो आपका पार्टिसिपेशन मांगता है। कोई भी चीज हो, जितना पार्टिसिपेट आप करेंगे किसी भी फॉर्म में, आप पढ़ के इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिकली इट्स मोर ऑफ एक्सिक्यूशन जॉब होता है। Yes. तो सारी पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, वो हमारा काम है। एक तरीके से सबका एक काम होता है, सबकी एक ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग करने के बाद आपको वो करना पड़ता है। तो थ्योरी अपनी जगह है और प्रैक्टिकल अपनी जगह है। तो हमारा एक प्रोफेशन ऐसा है कि आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है और प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। वेरी नाइस सर। ऐसा कहा जाता है कि एक्टिंग जो करते हैं उन्हें हम अपने खुद के पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल में रखना होता है। जब चाहे तब हंसना होता है, जब चाहे तब रोना होता है, और वो इमोशन पे उस कैरेक्टर में घुसना, वो कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लेना, ये सारी कलाकृति एक एक्टर ही करता है। काफी बढ़िया सर आपने इन्फॉर्मेशन दिया हमारे ऑडियंस के लिए। जब हम बात कर रहे हैं कला की, तो उसे हम सीख सकते हैं, उसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कला की जो अनुभूति है वो हमें इनर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है और हमें हमेशा खुश रखती है। तो जब भी हम खुशी की बात करते हैं सर, तो आपको काम के अलावा और कुछ हॉबीज या आप ऐसे कुछ जिससे आप खुशी ढूंढते हैं, ऐसा कुछ है? हॉबीज बहुत सारी हैं। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखता हूँ, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ। अब वो मेरा काम भी है, लेकिन वर्ल्ड सिनेमा आपको सीखने को मिलता है, या कुछ ऐसी कहानी जो आपको मुतासिर करती है कुछ करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है और अपनी जर्नी को और बेहतर करने के लिए आपको मोटिवेट करती है। तो ये एक इस तरह का प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। और एक एक्टर हो या कलाकार हो, किसी भी कि हमारे एक्टिंग क्षेत्र में अब क्या है कि आज के जमाने की बात मैं करूं कि आज एक्टर तो है, उसके साथ वो एक सामाजिक इन्फ्लुएंसर भी है। तो वो भी एक नई चीज जुड़ गई है। तो जैसे पहले कहा जाता था कि यू हैव टू जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन। आज की डेट में, आज के समय के हिसाब से ये परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। आजकल आपके काम से कनेक्टेड कितने सारे काम हैं। आज अगर मैं थिएटर नहीं करता और मुझे ऑडियंस को फेस करने की एबिलिटी नहीं डेवलप होती मेरे अंदर, तो शायद मैं आपसे इतने खुल करके बात नहीं करता, आपके सवालों को सुनकर पर चिंतन मनन इमीडिएटली। ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ही देन है। मतलब एक्टिंग अपने आप आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है। आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है स्टेज के ऊपर, तो आप बात कर सकते हैं लोगों से, आप में कोई भी डर नहीं रहता, आप हर चीज में मिल जाना चाहते हैं, अपने आप को खो देना चाहते हैं। उसके बाद आप एक दूर, जैसे सीनरी को देखने के लिए आपको अपनी सीनरी बनाकर थोड़ा दूर जाकर देखना होता है, और आपको लगता है कि अरे यार मजा आ गया। तो वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड में उसका बाई प्रोडक्ट है वो एसेंस जो महसूस होता है ना आपको, वही है जीवन में। और आनंद की परिभाषा ही वो है। ग्रेट। व्हाट इज आनंद? आनंद इज द सुप्रीम रियलाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ग्रेट। सो प्रोसेस है स्पिरिचुअल और मटीरियल। It's an inclusive process where we have to combine everything and get the best out of it. डेफिनेटली। और वो एक्सपीरियंस कर पाना, उसे समझना, और एट द एंड ऑफ द डे उसे ग्रेटिट्यूड दिखाना, ये हम कह सकते हैं कि हमारे आने वाले फ्यूचर में जो हमारी आनंद की जो सीक्वेंस चलता है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और इतने सारे डिस्कशन हमने किया। इसके अलावा मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि being an actor, you also giving trainings to some companies, corporates, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के साथ में बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया को अलग अलग तरह से यूज करते हैं। वो आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आप वाकई में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या सिर्फ लोगों को टिटिलेट कर रहे हैं, या कुछ कहने के लिए कुछ भी बना रहे हैं? उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए। मैंने अभी एक मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कशॉप किया था, जिसमें मैंने यूसेज ऑफ सोशल मीडिया के बारे में बात की थी कि सोशल मीडिया का करेक्ट यूज कैसे होना चाहिए। आजकल क्या है, भ्रमित जानकारियां बहुत मिलती हैं।
कोई एक कुछ कह रहा है किसी न्यूज के बारे में, कोई कुछ कह रहा है, तो आपका काम क्या है कि आप अपना सत्य खुद ढूंढें, फाइंड योर ओन ट्रूथ योरसेल्फ। देयर आर सो मेनी मीडियम्स, लाइक मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है जहां पर हजारों ट्रेन आ रही हैं, रुक रही हैं, सोशल मीडिया, नेट साइट्स, आप किसी भी ट्रेन में चढ़ के कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो किस ट्रेन में जाकर कहां आपको पहुंचना है ये आप पर निर्भर करता है। आपके पास में पूरा एक रोड मैप होना चाहिए। आपको हमेशा ये रिमाइंड करते रहना चाहिए हर दिन अपने आप को कि भाई आज मैं कल से आज के बीच में क्या कहीं डेवलप हुआ है, कुछ कहीं मैंने कुछ इंप्रूव किया है अपने आप को, मैं किन एरियाज में इंप्रूव कर सकता हूं और अपने आप को। तो ये सारी चीजों को जब आप रिवाइज करते रहेंगे, जैसे म्यूजिक में रियाज करना पड़ता है, आप जितना रियाज करेंगे आपकी आवाज उतनी अच्छी होगी, आप जितना अभिनय करेंगे उतने लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। एंड आई थिंक इफ यू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स, प्रैक्टिस इज अ हैबिट मेरे हिसाब से। अगर आपकी आदत हो जाएगी, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिम जाते हैं, अब जिम ना जाए वो तो उनको लगता है अरे क्या, तो आदत है वो फिर शौक में बदलता है, शौक जो होता है वो पैशन में बदलता है, पैशन क्रिएशन में बदलता है, क्रिएशन एक यूनिवर्सल फॉर्म लेता है और फिर एक रिकग्निशन होती है टुवर्ड्स द एंड। तो आपकी जर्नी को लोग असेस करते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं कि यार वो बंदा या बंदी जो भी है उसका अपनी जिंदगी को देखने का तरीका थोड़ा अलग है, पर्सपेक्टिव है। तो वो बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी तरह के काम को सही तरह से करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपको फोकस बहुत चाहिए। और आज की दुनिया में सोशल मीडिया भी एक डिस्ट्रक्शन के तौर पे है, चाहे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो कभी कभी डिटॉक्स सिर्फ दवाई खा के अपनी बॉडी को क्लीन करना नहीं होता। कभी कभी ये है कि भाई सब बंद कर दो, 6-7 दिन एकदम नेचुरल सराउंडिंग में जाओ, कोई किताब लो, जो दिमाग में आ रहा है उसको लिखो, अपने बारे में ही अपने आप को ऑब्जर्व करके सोचो कि आप कौन हैं, अपनी ही खोज में लगे रहिए। आपने स्वयं को खोज लिया तो मिल ही जाएंगे वो जिसको भी ढूंढ रहे हैं आप। बहुत ही बढ़िया आपने एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग फील्ड में आने के लिए भी आपने आपके जिंदगी के जो अनुभव है वो सारे बयां किए हैं। बहुत ही बढ़िया है सर। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जिंदगी में हम जब सक्सेसफुल होते हैं और सक्सेस की राह पर चलते हैं तो बहुत बार हमें हमारा जो भूतकाल है, हमारा जो पास्ट है वो हमें याद आता है। तो आपको ऐसा कुछ लगता है जिसकी वजह से, जिनकी बदौलत आज आप यहाँ पर हैं और जिनका योगदान है आपकी जिंदगी में, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बचपन से मैं कुछ एक दो टीचर्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया बम्बई आने से पहले तक। तो बचपन में मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाया था। वो मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे, तो हमारे मौलवी साहब करके थे जो अचकन पहनते थे, मतलब बेंत लेकर आते थे, अंग्रेजी वगैरह बहुत अच्छी बोलते थे। तो पापा ने बोला कि हमारे बेटे को भी थोड़ा अंग्रेजी वगैरह मौलवी साहब पढ़ा दिया करिए आप। तो मौलवी साहब शाम को आते थे, मौलवी थे वो, लेकिन वो उनको कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा था ऐसा जिसको हो। तो मुझे वो उन्होंने बोला कि हाँ ये लड़के में मेरे को थोड़ा स्पार्क लगता है, मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन मैं बहुत सख्त हूँ। तो शाम को आने लगे, फिर वो धीरे धीरे जो आज मेरी जबान साफ है और मैं अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, आई कैन स्पीक। इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 टीचर्स, मौलवी साहब और बाबूराम शुक्ला जी थे बचपन में, जिन्होंने बचपन में मौलवी साहब और बाबूराम शुक्ला जी, मुझे नाम मौलवी साहब का तो नाम भी याद नहीं, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। तो बाबूराम शुक्ला जी मैथ्स भी पढ़ाते थे और हिंदी भी पढ़ाते थे। फिर मैं जब बम्बई आ गया, क्योंकि आई केम टू मुंबई इन अ वेरी at a very early age in my life, and यहाँ मेरे को जो एक्टिंग के टीचर्स मिले, जैसे पंडित सत्यदेव दुबे, सलीम गौस जी, अतुल तिवारी जी मिले, इवन मकरंद देश पांडे जी के भी साथ में एक लघु समय तक मैं जुड़ा था, आज भी जुड़ा, वो को एक्टर के तरह जो मेरी नई फिल्म आ रही है उसमें है वो साथ में। फिर सारा मैचेट एक जर्मनी की वो थी, एक थी हिमा देवी जी, हिमा देवी हिमा कला केंद्र का टाउन में है, उनके साथ मैं एक प्ले कर रहा था, वो गुजर गई बाद में। लेकिन मुझे याद है कि वो भी कमाल की टीचर थी, सब गुरु लोग थे। इन लोगों ने छोटी छोटी चीजें, सबके अंदर वो खासियत थी कि वो एक चीज ऐसी बताते थे
जो अलग होती थी, मतलब एक लाइन आपको, जैसे मेरे को सलीम गौस साहब ने बोला था कि इफ यू कैन स्पीक वन लैंग्वेज वेल यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज वेल। अगर भाषा आपकी एक जबान आप शुद्ध बोल लेते हो तो दुनिया की कोई भी भाषा आप शुद्ध ही बोलोगे, क्योंकि वो आपने अपने आप को वैसा ढाल लिया। छोटी छोटी चीजें होती है। तो पंडित सत्यदेव दुबे जी बहुत सख्त थे, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि फोकस क्या होनी चाहिए, फोकस ऐसी होनी चाहिए कि जब आपके सामने रसगुल्ला हो, छोटी सी बात है बट बहुत गहरी बात है, जो उस वक्त तो हमको मजाक लगी, समझ में नहीं आया एकदम। तो वह जब तुम्हारे सामने रसगुल्ला हो ना, तो रसमलाई के बारे में मत सोचो, फोकस का लेवल वो होना चाहिए। बी इन द मोमेंट, बी इन इट। एंड अतुल जी का एक था, उन्होंने एक अतुल तिवारी काफी वो कमल हसन जी की मूवीज वगैरह भी लिखी हैं। फिर अनिल चौधरी साहब आए जिन्होंने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। वो मेरे गॉडफादर थे, उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था टेलीविजन शो सब चलता है टेक इट इजी में, मुझे हीरो के तौर पे लिया था। और मेरे साथ में सारे एनएसडी के बड़े बड़े एक्टर थे। मैं था, नादरा जी, नादरा जही बब्बर जो राज बब्बर जी की वाइफ हैं वो थी, अन्नू कपूर थे, दीपक केजरीवाल थे, चंदू पारखी जी थे जो बहुत ही लेजेंडरी मराठी स्टेज के एक्टर हैं, वो सभी जानते हैं, बहुत ही ग्रेट लेजेंड है। प्लस एनएसडी का हर एक्टर के साथ मैंने काम किया था जब मैं एकदम नया एक्टर था, मैं हीरो था शो का। तो आप सोच सकते हैं कि एक टीचर्स की वजह से, तो अनिल चौधरी जी तो मेरे वो टीचर भी थे और उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीजें सिखाई। कैमरा कैसे फेस करना है, जब मैं कैमरा फेस करना जब सीख गया, और लाइट्स, तो कैमरामैन थे सुनील शर्मा जी, उन्होंने भी मुझे कुछ छोटे छोटे टिटबिट्स दिए कि भाई कैसे लाइट लेनी है, क्योंकि आपको अगर मैं ये देख रहा हूँ और ये लाइट है और मैं यूं देख रहा हूँ तो कहीं और मतलब लाइट, अगर मैं ये देख रहा हूँ तो ये लाइट पड़ रही है, मुझे पता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ट्रेनिंग का हिस्सा होती है जो बहुत जरूरी होती है। तो वो टीचरों का योगदान आपके जीवन में देर तक रहता है और पूरी जिंदगी भर आप उसका लाभ उठाते हैं। तो आई एम सो लकी दैट God blessed me with some great teachers. Great, sir. Definitely, our contribution in the student's life is really great, because, as I can say that when a student is having their focus on achieving something, so he do certain activities, and sometimes I feel, because I am being a teacher, sometimes I feel students are not in a position to focus. They are not in a position to understand what they are exactly supposed to do. And after understanding the situation, I thought there must be certain kind of tools which we should provide them. And as a teacher, I have written one book. Great. And that book is available with us. And it is in a very final stage of editing, and it is going to be released soon. Very nice. So I just created one copy and I will just show that to you. Just give your honest feedback how it can be helpful for the students. Surely I will. Recently, I have written this book, How to Be a Highly Effective Student. Just have a look at it and just let me know how it is. To be a highly effective student, develop a growth mindset, manage your study time, engage in active learning, build strong relationship, ensure long-term success. That is a very important point. Strong mental health. Very nice. This is a very nice inclusion. Academic performance. This I'm looking forward. ये मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छी चीजों का अध्ययन करने को मिलेगा। तो आप प्लीज मुझे जब पब्लिश हो जाए तो एक कॉपी जरूर दीजिएगा रोहन जी, अपने सिग्नेचर के साथ। तो मैं इसको रखूंगा। डेफिनेटली इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। Set and achieve academic goals. Okay, learn how to set smart goals, right? Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Prioritize tasks effectively. Track your progress to ensure academic success. Very nice. Develop a growth mindset, जिसमें embrace challenges as opportunities for growth. Persist through obstacles. View failures as stepping stones to success. Very, very nice. Prioritize tasks and manage time effectively. Master time management tools. Create schedules, to-do lists, time blocking techniques. Stay organized and focused. Cultivate active learning habits. Yes, habits are to be cultivated, and that's how they build your character. Go through course material, habit of asking questions, participate in discussions, apply concepts in real life scenarios, build resilience and overcome obstacles, develop strategies to minimize stress, inculcate habit, create a support system in a
very amicable way, learn valuable lessons from setbacks, yeah, experiences. You see how we had performed in the past, create our performance of the future. So it's a very valid point. Effective relationship with teachers and classmates. Yes, this is very, very important. Communicate openly, actively listen to others, show genuine appreciation to others, build strong and meaningful connection, empathy, Yes. all of the things. You see, when you are in a working atmosphere, your co-worker, your partner, they are your actually motivation for your goals and tasks that they also help you to achieve. So एक effective जो एक meaningful connection के साथ जो आपने point लिया ना, build strong and meaningful connections, it is very important, and maintain a healthy steady life balance. Prioritize self-care, set boundaries between study and leisure, engage in moderate relaxing techniques, activities. इसमें तो मुझे लग रहा है आपने सारे ही कर लिए. अगर मैं बुक ना पढ़ के इतना सब दीवार पे टांग लूं तो Great. PhD हो जाएगी. Great. Very nice. What is your take on when a student is having some kind of depression about the responsibility and the challenge that he has to face and he has to perform well? So जो माइंड पे उसका इफेक्ट होता है, उसको कैसे कोप करके एकदम चीजों को नॉर्मल रख सकते हैं? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट एज पर यू? So basically, from last 10 years, I am into the education field. I am teaching so many of students, and I can see this kind of situation sometimes, but it is a very rare situation because the students, those who are in the physical showcase of their depression, they needs guidance basically, first of all, because when you are depressed, you are going in a zone of silence. You feel that I am alone. You feel that this is something which is not capable. You are not capable enough to do that thing. And the student is basically making their own self beliefs. Okay. And that is what take them into the depression. So once we work on their subconscious mind, see, for example, whatever you do, it has a consequences. And when that student realizes, if I do certain things in a certain way, these are the consequences. And if I am doing that things, then I should be ready to face that consequences. Now, we don't have to do the hard work and we don't want to face the consequences. If these two things the student has beliefs, then it is not going to happen in a reality. So when there is a mismatch of what you think and what is the reality, the first impression on our mind becomes as a depression. Because when we think that yes, this is something which I want, so that time I need to do some activities so that I can complete what I want. Now the person is not willing to do and not getting the results, then there is a gap. There is something, as you're saying, it's self-induced. Yes. Mostly it is created by your own sort of understanding about things where you are miscalculating. Yes, and what is to be anyone done. can do anything. Yeah. If that is your belief system, in a very rare case, you will be in a depression zone, basically. Many of my students may have some doubt about their own performance. But for depression, it is sometimes a medical condition also. So they must visit to the psychiatrist or a mental health expert when there is a physical symptoms. That time they need a kind of Yes. medicines also, because in our India, you know that mental health is not that much Yes. positively taken into the consideration. And when you feel depressed, when you feel shivering, when you have different, sweating, and there are different, what do you say, physical symptoms of depression, that time medicines is going to help. It is the one point. Second point is making our strong inner beliefs, having develop our subconscious mind, that helps us. And for subconscious mind, it is very important that we should do affirmations. So when we do affirmations, we are training our subconscious mind slowly behave with and then we are in a position to take 100% responsibility of what we do. That's a great question, actually. Another question which would be totally
is like what you say that balance your work and leisure. That is one line. Yes. What is your take on that? Like what do you suggest for that? Because absolutely, when you're in your study life, you are going through the real life also, which as a person you see. You get inspired to Distracted, yeah. explore the real life also, but you have to keep up with your study. So what is that mantra that you would like to do? Great, sir. It was a really wonderful question because students are basically facing this challenge of having gone in a zone of either study. Some students are like they are only study oriented, focused, and people call them ये तो किताबी कीड़ा है. और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें टैग देते हैं लोग कि ये बैक बेंचर है, ये इनका पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं है और ये कुछ भी पढ़ेंगे नहीं और लास्ट के दिन में शायद उनको ये भी पता नहीं होगा कि आज कौन सा एग्जाम है. तो शायद हमें इन दोनों का एक सुवर्ण मध्य जिसको बोलते हैं कि एक मिडिल ग्राउंड पे उसको हमें लेके आना है. तो वो कैसे लेके आ सकते हैं? जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे गोल्स जब क्लियर होंगे कि हमें ये जिंदगी में अचीव करना है तो हम उस तरह से अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे. बट ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें क्लास में अच्छे मार्क्स से पास होना है या तुम्हें अच्छे नंबर से पास होना है. तो वहां पर जो फोकस है गोल सेटिंग का वो सिर्फ नंबर पे आ जाता है. जब आप होलिस्टिक स्मार्ट गोल अपना रखते हो तो उसमें आपको आपका एकेडमिक, आपका प्रोफेशनल, आपका करियर, आपका रिक्रिएशनल, आपका मेडिकल बैलेंस सब इसमें आपके गोल होने चाहिए. इवन फॉर स्पिरिचुअल, फॉर ट्रैवल, फॉर आवर रिलेशनशिप्स, फॉर आवर रिलेटिव्स, सबके लिए एक एक गोल आपका होना चाहिए. और जब आपको पता है कि मुझे इन सारे एरियाज पे काम करना है तो वहां पर हम हमारे समय का नियोजन उस तरह से कर सकते हैं. अगर हम बात करेंगे अपने आप की तो हमें एक चीज अच्छी लगती है. फॉर एग्जाम्पल किसी को फिल्म देखना अच्छा लगता है तो वो दिन भर पूरा फिल्म देखता रहेगा तो उसका वो फिल्म देखने का गोल तो हासिल होगा. उस वक्त को उसने फिल्म देखने के लिए यूज किया तो दूसरे काम उसके रह जाएंगे. तो शायद वो ऐसा कर सकता है कि एक फिल्म देखे, वो बाकी के जो काम है वो भी करे और मतलब उसको आप प्रायोरिटाइज जिस तरह से करेंगे उस तरह से आपका वर्क और आपका लीजर टाइम जो है वो दोनों बैलेंस हो सकता है. और वो तभी होगा जब आपके सामने क्लियर गोल होगा कि स्टूडेंट को पता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो अभी जाके मैं मेरा गोल जो है वो अचीव कर सकता हूँ. अब देखिए, ये आपने जो बात कही, अगर मैं एज एन आर्टिस्ट इससे इसको लेकर जाऊं तो जो जिंदगी में स्टूडेंट एक अपनी लाइफ में गोल अटेन करने के लिए मेहनत करता है, हमारे कलाकारों के लिए तो कितनी जिंदगी हम लोग जीते हैं. तो आप सोचिए, जिंदगियों के बारे में जानकर, उनके बैकग्राउंड को जानकर, कितना एजुकेशनल है. तो एक एक्टर की जो तैयारी होती है वो बहुत कुछ एकदम एक यूनिवर्सिटी वाला जो कोर्स मटेरियल होता है उससे कम नहीं होती, क्योंकि घूम फिर के ये भी हमारा काम ही है. और अगर हम काम को अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी चीजों को बैलेंस करते हैं, एक मिक्स एंड मैच क्रिएट करते हैं, जैसे आपने अच्छा चीज पे प्रकाश डाला, तो उसके इम्पैक्ट ऐसे होते हैं कि आपको उसका पूरा जो एसेंस है, उसका बेस्ट क्रीम जो है वो मिलता है और आपको ये लगता है कि सही हुआ. इवेंचुअली एंड में जाके सारे स्ट्रगल ऐसा लगता है, घूम के आप देखो कि अगर आपने अचीव कर लिया कोई काम करने, जैसे कोई प्रोड्यूसर है फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत उसको आ रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो एक्टर्स तो बाद में आते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो दिमाग में सोचा, फिल्म को लेकर चैलेंजेस आए, ये हुआ वो हुआ, फिर एंड में जब बन जाती है और जिस दिन रिलीज हो जाती है वो होता है एक तरीके का आपके कर्मों का फल. जैसे कि एक स्टूडेंट गाइडेंस लेके ऐसी बुक पढ़ के, अगर मुझे लगता है कि डेफिनेटली यू शुड गेट अ कॉपी ऑफ दिस बुक रिटन बाय मिस्टर रोहन होमकर, बिकॉज उसके पॉइंट्स ही अगर आप लिख कर लगा लेंगे, जैसे मैंने बोला, यस हो गया काम, मतलब. यस. और ये एक बुक की और भी आपने खासियत देखी होगी कि इसके अंदर कुछ ब्लैंक जगह रखी है. जी मतलब तो वो एक्टिविजन के लिए है. तो वो है सर एक वर्कबुक के लिए. मतलब इसे जब स्टूडेंट परचेस करेगा तो ये इसके अंदर
दिए गए वर्कशीट्स को फिल करेगा। ओके। जैसे उसका अगर पहला पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट, तो ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए उसे लिखना है कि आई विल फाइंड द लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। मतलब उसने अगर लर्निंग एटीट्यूड, Affirmative है। हाँ यस, तो वो वर्कबुक के तौर पे इसको हमने बनाया है। और Very nice. इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिर्फ रीड करके, हमें सिर्फ समझ के हम हमारे माइंड में उसको पहुंचाएंगे, बट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक पढ़े होंगे, तो वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्यों करना है, इससे आपका क्या फायदा होगा। ये सारी चीजें उन बुक्स में अवेलेबल होती है, पर आपको ये काम किस तरह से करना है, हाउ यू आर गोइंग टू सेट योर गोल, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप योर ग्रोथ माइंडसेट, हाउ यू आर टेक योर टाइम एंड मैनेज इट इफेक्टिवली। तो ये सारी चीजें इस वर्कबुक के थ्रू बच्चों को हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। और ये एक मेरा क्राफ्ट है, सब बोलिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये पॉडकास्ट थोड़ी डिस्टिंक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो एरियाज हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं और इंक्लूड कर रहे हैं, वो ज्यादातर पॉडकास्ट में मतलब सबका एक गोल होता है कि हम इस पॉडकास्ट में इतनी चीजें हाईलाइट करेंगे। ये ऑल राउंड एक तरीके से आपकी वर्सटाइल है, versatile and inclusive and effective, and it's like a remedial sort of a thing that you have come with a book with all the remedies there already there. You are a teacher and मतलब everyone is playing so many different roles. मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि आप टीचर हैं, तो आप जिस तरह से मेंटल हेल्थ के बारे में, आप एक फ्रेंड भी हैं, जिस तरह से आप एक लेजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए ना कितनी सिमिलरिटीज हैं इंसानों की पर्सनालिटीज में। कलाकार, हर इंसान के अंदर का वो कलाकार ही है जो लोगों को जोड़ता है। क्या बात है। एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग, अपने अपने अंदाज में करना है और आप कर रहे हैं उसको। तो आपके बुक को मेरी पूरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और जब भी हम बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स के लाइफ से और ये सारे पॉडकास्ट में बातें कर रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है सर जी। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि रोहन सर आप इतना सारा चीजें क्यों करते हो, क्या रीजन है इसके पीछे। तो मैं उनको बताता हूँ कि 2006 में जब 26 जुलाई 2006 में वो बाढ़ आई थी, तो हमारा बदलापुर का जो बंगलो था वो पूरा पानी से भर गया था, बहुत सारा नुकसान हो गया था। और आपको जैसे पता है कि बंगलोज होते हैं वो थोड़े ऊपर होते हैं, जमीन के सतह से थोड़े ऊपर होते हैं, बढ़ जाता है। और पानी जब घर के अंदर आया तो इसका मतलब घर के नीचे की जो जमीन है उसमें पहले से ही पानी था। यस। तो जब हम वो बंगले से बाहर निकले उस टाइम पे हमारे नाक में आंख में सब पानी जाके हम डूबने वाले थे, एक प्रकार से आप बोलेंगे। तो उस समय पर हम मरते मरते बचे, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी दादी, ये सब चारों लोगों ने उस समय पर ऐसा अपना खुद का डेथ आंखों के सामने देख रहे थे कि हम अभी इस पानी में एक तो बह जाएंगे, कृपा रही कि मर जाएंगे या कुछ तो होगा। और उस समय पर हमारे बाजू वाले बिल्डिंग ने हमें सहारा दिया और सेकंड फ्लोर पे हम जाके उनके यहाँ पे ठहर गए। तो हमें जिंदगी मिली दोबारा। तो जब ये दोबारा मिली हुई जिंदगी को हम बोनस की तरह देखते हैं तो सोचते हैं कि इस जिंदगी का कोई भी पल जो है वो हमें वेस्ट नहीं करना है। और इसके वजह से मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, जब स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, फिर कॉर्पोरेट से भी मुझे कभी कभी इनविटेशन मिलता है कि आप हमारे इंडस्ट्री में आके हमारे ट्रेनिंग करो उनके लिए। मुझे पर्सनली ये जो बाढ़ वगैरह का जो एक्सपीरियंस था उससे मुझे स्विमिंग का इम्पोर्टेंस समझा, तो मैं लोगों को स्विमिंग भी सिखाता हूँ। उसके बाद मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट में मेरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो मैं डिजास्टर में प्रिपेयर्ड कैसे रहने का ये भी लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। डाइवर्सिफाइड है। तो ये सारी चीजें करने का एक ही मुझे एक कहते हैं ना कि एक इंस्पिरेशन है, वो है मेरा लाइफ जो मुझे बोनस के तौर पे मिला है। बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव, और ये चीजों को लेने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। मतलब दिस इज लाइक प्योरली समवेयर it has a very spiritual quotient. Yes. Because you are looking at your own life from you are looking at your own life. Yes. See, it's like that. ये हमारे जैसे थिएटर में इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मैजिक मोमेंट बोलते हैं, मैजिक थर्ड आई कॉन्सेप्ट बोलते हैं। थर्ड आई कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही परफॉर्म करते हुए देखते हैं कि मेरे साथ घटा है
और जब पहली बार मुझे इस बारे में पता चला था, जब मैं स्टूडेंट था, तब मुझे ये क्या है यार, क्या करने आए थे हम, तो मतलब सोचा था अच्छा बाल होना चाहिए, अच्छा मेकअप, बट जिंदगी कितनी तहों में होती है। वो जब आप जाते हैं, जैसे कि ये एक्सपीरियंस ने आपको चेंज कर दिया, तो जब वो एक्सपीरियंस हुआ तो मेरी पूरी अप्रोच चेंज हो गई एक्टिंग को लेकर। और मैंने सर को बताया बाद में, जो हमारे डायरेक्टर थे, बोले कि हाँ वो तो लगता है कहीं ना कहीं तुम सही राह पे जा रहे हो, कीप इट अप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपका बैलेंस खराब होगा या आपका किसी भी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो वो समय होता है अपने आप को संभालना। वहां पर गुड बुक्स लाइक दीज, गुड टीचर्स लाइक हिम, एंड पीपल आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, Yes, yes, like definitely. you were also helped. So it's always give and take in life. जो मिलता है उसे लौटाना चाहिए। कहते हैं सरस्वती विद्या ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, बांटने से और बढ़ता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही नहीं बनाए गए, कुछ चीजें जानने के। अब वो थोड़ा मॉडर्न टाइप की चीजें हैं कि भाई अब जैसे लास्ट हमारी पॉडकास्ट में वो लोगों ने कवर किया कि स्पेस डाइट के ऊपर थी, वो डाइट के ऊपर अभी लोगों ने स्पेस की डाइट फॉलो करे। भाई स्पेस में थोड़ी हो, तुम जमीन पे हो, तो जहां हो वैसे डाइट करो ना। स्पेस में बोलते हैं एक कैप्सूल, पतला होने के लिए लोग अपने आप को खोखला कर रहे हैं अंदर से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बराबर। आप खुश नहीं हो, पतले हो, सूखे हुए हो, आपके अंदर एक कैलोरी नहीं है, आप मोटे ताजे हो, अच्छी तरह स्वस्थ दिखते हो, खुश रहते हो, 100 साल जी जाओगे। वो जो अपने पास है ना, उसकी कदर करना सीखो, उसको पूरी और रियलाइजेशन। जो नहीं है ना, वो जिसके पास है उसको बधाई दो कि भाई तेरे पास है ना, अच्छा हेल्थ, अच्छा है। तो वो थॉट प्रोसेस से कभी ना कभी आपके पास भी वो चीज आ जाती है, क्योंकि आप उसकी कदर कर रहे हो। बिल्कुल, एक जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब आप यहाँ नहीं जा रहे, वहां नहीं जा रहे, जितना आप कवर कर सकते हैं वो करिए। जैसे कि अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं शेयर करूंगा। आजकल प्लेटफॉर्म्स बहुत, सब लोग जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपका थिएटर एक मीडियम हो गया, ओटीटी एक मीडियम हो गया, टीवी सीरियल एक मीडियम हो गया, और फिल्म एक मीडियम हो गया। ये ओटीटी क्या है? इसकी डेफिनेशन ही है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप होती है हर चीजें। इसमें वो पुराने जो सीरियल्स की जो भावनात्मक स्टोरी है, अगर आप किसी ओटीटी पे डाल दो वो चलेगी नहीं। यहाँ पे थोड़ा कुछ एक स्वैंक, मतलब आजकल अगर डार्कनेस भी चाहिए तो उसमें भी एक थोड़ा रिलेशनशिप अलग तरह के। और ऐसा कह सकते हैं कि ओटीटी पे हम ज्यादातर पर्सनलाइज कंटेंट है, पर्सनलाइज और थोड़ा डार्कर साइड पे ज्यादा है, ओवर द टॉप है वो। थोड़ा ओवर द टॉप, बहुत सही नाम रखा है जिसने भी रखा है। एक रॉ के ऊपर मैं एक सीरीज कर रहा हूँ, वेब सीरीज, जिसमें मैं स्पेशल एजेंट हूँ। तो लेकिन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स में सब चीजें ओवर द टॉप है। वहां पे अगर मोहब्बत भी होगी तो कुछ एक एंगल ऐसा होगा, वहां पे अगर आप थ्रिलर है तो ऐसा कुछ चल रहा होगा, मतलब जहां पे एक नॉर्मल आदमी सोचेगा यार ये भी होता है क्या, ये क्या है भाई। जैसे पहले जमाने में फिल्म देखने जाते थे, पहली रो में बैठ के जो लोग देखते थे, अब हीरो मार रहा है तो बेचारा एक रिक्शा चलाने वाला है सोचता था कि बाहर आऊं मैं, मतलब इम्पैक्ट ऐसा है। तो आजकल जैसा माइंडसेट हो गया है, पूरा समाज जिस तरह का है उसका रिफ्लेक्शन है। जब मैंने इस राह पे चलने का देखा कि बहुत सारे लोग मेरे सक्सेस टॉक शो के माध्यम से मेरे से जुड़े, तो कुछ लोग आपके जैसे ही फिल्मी दुनिया के हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि जो सुन के मैं हैरान रह गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे थोड़ा कंफर्म करवा लेता हूँ कि जैसे कोई फिल्म शुरू होती है, उसका कंसेप्ट शुरू होता है, तो वो कंसेप्ट के बाद वो फिल्म एक प्रकार से हम देखेंगे तो 1 साल 2 साल उसका पूरा प्री प्रोडक्शन, फिर उसका शूट, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, फिर रिलीज, ऐसे में 3-4 साल निकल जाते हैं। तो वो टॉपिक का जो रिलेवेंस है, वो टॉपिक का जो थॉट प्रोसेस है, वो 3 साल में सामाजिक जीवन में बदल जाता है। जैसे कि हमने देखा कि कोविड आया, कोविड के बाद कोविड के टॉपिक के रिलेटेड जब मूवी बनेगी तो 3-4 साल बाद लोग कोविड को शायद भूल चुके हैं, बट उस समय पे उस डायरेक्टर को लगा कि मुझे कोविड के सिनारियो पे मूवी बनाना चाहिए। शायद आज वो फिल्म रिलेवेंट ना लगे, बट शायद 10-20 साल बाद वो रिलेवेंट लग सकती है। मेरा सीधी तरह से अगर मैं उस चीज को आर्टिस्टिकली, कोई भी सब्जेक्ट कभी भी रेलिवेंट होता है अगर उसको बनाया उस तरह से जाए। आज आप देखिए
रोटी कपड़ा और मकान मनोज कुमार साहब ने बनाई थी। अभी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इतनी रेलिवेंट फिल्में उन्होंने बनाई थी। जिस वक्त आज हम देशभक्ति पे कुछ बनाते हैं तो लोग बोलते हैं ये तो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जब ट्रेंड नहीं था तब उन्होंने एक चीज क्रिएट की थी। एक तो आप अगर एक ऐसी फिल्म बना रहे हो जो आज डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, जो वी शांताराम जी की फिल्म थी, एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जो कहीं गया था और वहां पे जाके उसने अपनी जान पर खेल के लोगों को बचाया था, आज भी रेलिवेंट है। वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो आप कैसी बनाते हो फिल्म? आप कोविड, अगर आपका एक बैकड्रॉप में कोविड है, एक स्क्रिप्ट मैंने भी लिखी है जिसमें कोविड ही बैकड्रॉप है क्योंकि उसने ही इंस्पायर किया था। अब उस बैकड्रॉप को चेंज आप कर सकते हो क्योंकि वो आर्टिस्टिक आपके पास लिबर्टीज होती है, एज ए राइटर भी होती है, एज ए फिल्म मेकर भी होती है। बट आपका कंटेंट में वैल्यू क्या है? व्हाट इज द पर्पज यू आर मेकिंग? इधर यू आर जस्ट मेकिंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, जो ज्यादातर लोग आज कर रहे हैं। 500 करोड़ 400 करोड़, मतलब फिल्म में कुछ होता नहीं है। मतलब ये अच्छा ये इतना पैसा लेता है। मैंने कहा यार ये इतना पैसा ले रहा है, ये एक्टर साउथ का इतना, मतलब कलाकार है, मतलब ऐसा उन लोगों ने, जो हम लोग टीवी सीरियल्स में शुरुआत में जब काम करते थे तब वहां पर डायलॉग हुआ करते थे, पता है उसकी 100 करोड़ की ज्यादा, ऐसे डायलॉग। तुम कहते हैं कितने लोग ऐसी बातें करते, 100 करोड़ मतलब आजकल 500 करोड़ 4 दिन में। तो बहुत ही एक सिनेरियो बदल गया है। तो ठीक है, बट आपकी रेलिवेंस तभी बनेगी, उसकी डेप्थ क्या है? उसकी डेप्थ तभी बनेगी जब आपने जो किया है उसके अंदर जो कंटेंट रखते हुए आपने उसकी रेलिवेंस को कितना एक्सरसाइज किया है, तो आपकी फिल्म की लॉन्जिविटी, आपके सब्जेक्ट की लॉन्जिविटी रहेगी हमेशा। ग्रेट ग्रेट, रियली इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बेसिकली। और जब भी हम इस पर्टिकुलर सक्सेस टॉक शो की बात कर रहे हैं तो देर आर मेनी इनसाइट्स विच आवर पॉडकास्ट डिस्कशन हैज गिवन टू आवर ऑडियंस। इफ आवर ऑडियंस वांट टू कनेक्ट विथ यू, हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू? Well, they can connect with the best way to be through an email address, which is bobbyvatsa@yahoo.com. And if we find for the meetings also, then we will take it from there. And there will always be a channeled way. And आपके स्टूडेंट्स के साथ में कुछ करना है तो आप सबसे बड़े माध्यम रहेंगे। बाकी ईमेल से कोई भी जर्नल कॉन्वर्सेशन, कुछ भी क्वेरीज है वो की जा सकती है। मेरी वेबसाइट है www.bobbywats.com। मेरा यूट्यूब चैनल है क्रिएटिव कर्मा के नाम से। Amazon पर भी मेरी फिल्में हैं। मैंने 20-25 फिल्में की हैं और खुद की भी शॉर्ट मूवीज वगैरह बनाई हैं। थिएटर किया है 25-30 बड़े प्रोफेशनल प्ले किए। मेरा लास्ट प्ले था बादल सरकार जी का पगला घोड़ा। बहुत ही कमाल का प्ले था जिसके लिए बादल सरकार जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो अभी मैं रंजीत कपूर साहब के साथ भी एक प्ले कर रहा हूँ, जिन्होंने बैंडिट क्वीन जाने भी दो यारों लिखी है। अभी उन्होंने मुझे याद किया था, 2 दिन पहले ही उनसे बात हुई, तो वो कह रहे थे कि स्क्रिप्ट आने वाली है, आ जाना और स्क्रिप्ट ले जाना। तो एक कनेक्शन मेरा थिएटर फिल्म, जैसे रोहन जी ने बताया कि आपको डाइवर्सिफाई होते हुए भी हर चीज से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज आप करो, लेकिन दूसरे काम भी करो। जैसे बोला आप फिल्म देख रहे हो तो आप फिल्म देखो, लेकिन और कामों के लिए भी। तो किस तरह से आप बैलेंस करते हो और हर चीज से जुड़ा रहेगा इंसान, उसी को कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी। क्या बात, उससे बड़ा धन नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पॉडकास्ट के अप्रोक्सीमेट 100 एपिसोड्स हुए हैं और इसकी शुरुआत हुई 2014 में, 2014 में मुझे जॉन्डिस हुआ था और 1 महीना अप्रोक्सीमेटली मैं मतलब 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली मैं हॉस्पिटल में था। और वहाँ पर से मेरे माइंड में वही सवाल चल रहा था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे मैं मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करूंगा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड करता हूँ, आवाज मेरा रिकॉर्ड करता हूँ और वो बच्चों के पास पहुंचाता हूँ और फिर बच्चे वो सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो इस तरह से मैंने ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड किए और फिर जैसे ही मैं ठीक ठाक होके हॉस्पिटल से घर पे आया तो सोचा कि अभी इन ऑडियो नोट्स को वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ
और ऐसे मेरे YouTube चैनल की शुरुआत हुई। वाह, क्या बात। तो एक हम बोल सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपने बोला कि वो चैलेंज है, चैलेंज रहता तो वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के तौर पे लेके जाने वाला मेरा स्वभाव है। तो ना किसी के अभाव में ना किसी जी, के जी। प्रभाव में मैं क्या तो जीता हूँ मेरे स्वभाव से। वाह, वाह। तो इस तरह से कोई भी अभाव हो तो भी उससे डरना नहीं है, उसको यूज करना है, उसका प्रभाव देखना है कैसे। और फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी को टीचिंग में यूज करना चाहिए, और फिर मेरा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ। फिर 1-2 साल बाद मेरी शादी हुई। फिर मेरे वाइफ ने बताया कि तुम एजुकेशनल कंटेंट तो बना रहे हो, अभी तुम क्या करो कि मोटिवेशनल कंटेंट बनाओ। तो मैंने मोटिवेशनल कंटेंट बनाया। डर के आगे जीत है। क्या बात। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जब आप आगे जाते हो तो आपको वो सफलता मिलती है। तो ये बनाया मैंने। तो उसके बाद उसे एक उस समय पे 10,000 व्यू मिले। तो 1-2 दिन में हम और एक्साइटेड हो गए कि अरे ये तो लोगों को हेल्प कर रहा है। उस टाइम पे ना एडिटिंग का कुछ ज्ञान था ना कुछ था, सब वाटरमार्क वाले एडिटिंग एप्स यूज करते थे, पेड एप्स रहते हैं ये भी पता नहीं था। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी गॉन थ्रू। इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। जैसे हेनरी फोर्ड का आपने नाम सुना होगा, फोर्ड जिनकी गाड़ियां थी, वो गाड़ियों से कोई कनेक्शन ही नहीं था जब उन्होंने शुरू किया था। उनको एक ऑर्डर मिला कि तुम ये कर सकते हो, गाड़ियों का काम है, उसने ले लिया काम और ओवर द टाइम सीख गया और इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि वर्ल्ड में आज फोर्ड को तो जानते ही है सर। तो यही होता है कि आप किस तरह से चीजों के प्रभाव अभाव के परे जाकर अपने स्वभाव के हिसाब से करते रहिए और तो मंजिल तो मिलेगी। यस यस। और ये सब करता रहा 2014 से लेके 2018 तक ये सफर चालू था। फिर मैंने पॉडकास्टिंग चालू किया 2018 से। और फिर उसके बाद 2020 में कोविड आया, सब लोग घर पे थे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके पूछना शुरू किया कि सर आपने ये तो पहले से किया था, अभी हमें भी बताइए कैसे करना है। तो उस समय पे मैंने एक बुक लिखा, वीडियो क्रिएशन वर्कबुक। वाह। तो वहां पर मैंने सोचा कि लोग रोज मुझे फोन करेंगे तो मैं शायद 10 लोगों को हेल्प कर पाऊंगा, बट अगर मेरा बुक होगा ऑनलाइन अवेलेबल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को उसका हेल्प हो सकता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चलता रहा। और एक ऐसी घटना वापस घटी मेरे साथ कि मुझे बेल्स पाल्सी हुआ, और वहां से मेरा पूरा लेफ्ट साइड जो है फेस का वो पैरालाइज हो गया था। और उस समय पर भी मैं टिका रहा, मैं फिजियोथेरेपी लेता रहा, मेडिसिन लेता रहा, इसके एक्सरसाइज रहते हैं वो लेता रहा। और उस समय के प्रोसेस को भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ताकि जिनको भी ये लगे कि ये हमारे सफर का अंत नहीं है, इसके आगे भी हम जा सकते हैं। क्योंकि वो एक टेम्पररी पैरालिसिस का स्टेज था जो मेरे सिर्फ फेस को हुआ था। और एक स्पीकर, एक ट्रेनर, एक बहुत टीचर, बड़ी। और उसके लिए फेस, उसकी आवाज ये काफी मायने रखती है। और शायद आपको उस समय पे डरना नहीं है, या फिर वो डरेंगे तो वो जो बोलते हैं ना बीमारी है वो हावी हो नहीं, ये जाएगी बहुत आप ही पे। इंस्पायरिंग आपका एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एक फिल्म की थी कला, क्लासिकल सिंगर के बारे में फिल्म थी वो, उसकी कहानी बड़ी कमाल की थी। वो मैंने ही रोल किया था कि एक क्लासिकल सिंगर जब अपने पीक पे होता है उसकी आवाज चली जाती है, और वो ट्रैजिक टाइप की फिल्म थी। बट आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, जो जुझारू, उसी ने आज इस पॉडकास्ट के भी 100 एपिसोड पूरे हो गए। और आज मैं ये बात बिल्कुल यकीन के साथ और पूरे होशो हवास में कह सकता हूं कि यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, यू हैव सो मच फॉर द सोसाइटी, बिकॉज यू आर देयर फ्रॉम द कोर ऑफ योर बीइंग, यू आर डूइंग थिंग्स एंड इनोवेशन भी है। और मैं आपके लिए बहुत अच्छा शेर कहना चाहूंगा, आपने भी एक बहुत प्यारा शेर पढ़ा था, तो आपके लिए स्पेशल, आपके लिए रोहन जी के लिए है कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पर मेरी नजर है, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिस तरह से आपने अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए चीजों को ग्रो किया, सो यू हैव बीन लर्निंग योरसेल्फ। आप वो एग्जाम्पल हैं जिसने खुद करके एग्जाम्पल क्रिएट किया है। और सबसे बड़ी बात वही होती है कि यू हैव टू बी योर ओन एग्जाम्पल। यू कैनॉट जस्ट read about things, say or give a sermon that everybody does, but he is a living example where he has gone through so much. But आप जैसे ही लोगों को कहते हैं हैट्स ऑफ, एंड रोहन जी
keep doing this. Yes, yes, sir. And Definitely. God Thank is you. with you. Yes, sir. Wishes are there with you, because you are not only someone who is going to make a difference, but you deserve, you have worked hard for it. यस सर, और यही करते रहेंगे सर, हमारा योगदान जिंदगी में देते रहेंगे। Thank you. और आपके जैसे लोगों की मुलाकात करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सक्सेस टॉक शो। सर, सक्सेस टॉक शो की ये जो पूरी जर्नी है, उसके लिए क्या क्या आप कुछ शुभेच्छा देना चाहते हैं? द सक्सेस टॉक शो, कितने प्यारे 4 शब्द हैं। अगर आप इन शब्दों को द सक्सेस टॉक एंड शो, सक्सेस इज द आउटकम, ये आप रिवाइंड कीजिए। शुरुआत में ही जर्नी की पहला स्टेप होता है मंजिल। द सक्सेस टॉक शो, शो बाद में तो अब बन गया है। मैं बहुत ही एक सिंबॉलिक वे में, एक मेटाफोरिकल वे में डेफिनेशन दे रहा हूं कि ये जो शो बना है, ये आपकी बातों का ही उसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान है, क्योंकि वो बातों में प्रोफाउंडनेस है, एक नॉलेज के साथ में चीजों का, हर तरह के इमोशंस हैं, इंस्पिरेशन है, और लोगों के लिए चीजों को बहुत जेन्युइनली शेयर किया है, तो वो ही सक्सेस है। और बिल्कुल एप्ट नेम है द सक्सेस टॉक शो, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मैंने बहुत सारे टॉक शोज वगैरह किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, बट मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि मुझे आपके साथ मिलकर खुद कुछ सीखने को मिला कि चैलेंजेस आपके जीवन में आते हैं तो कैसे उनसे लड़ा जाता है, क्योंकि आपने खुद करके वो सब पाया है। एंड योर जर्नी टॉक शो से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये टॉक शो से आप जुड़कर अपने आप में, अपने जीवन के लिए एक तरह का एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहने जैसा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक टीचर है, यहाँ पर एक फिल्म मेकर है, एंकर है, मेंटल फिजिकल सारी चीजें बता रहे हैं, तो एक बहू और एक आर्टिस्ट है, सारी चीजों को संजोकर एक शो में लेके आए हैं जिसका नाम है द सक्सेस टॉक शो, एंड द नेम सेज इट ऑल, स्काई इज द लिमिट सर। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your well wishes, good words, and your support for our upcoming Always. episodes. Thank you so much. Thank you for being a part of the Success Talk Show, sir. Thank you. Thank you.